Hello students, good morning. Today we are going to learn the fourth lesson of your English book. आज हम आपके इंग्लिश बुक के फोर्थ लेसन को पढ़ेंगे. This is a poem. ये एक पोएम है. लेसन नंबर 4, somebody's mother. जो पोएम का नाम है वो somebody's mother. पहले हम पूरा पोएम को पढ़ते हैं. आप ध्यान से सुन लीजिए. उसके बाद हम पोएम को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करेंगे. सो लिसन केयरफुली. द वुमन वॉज ओल्ड एंड रगड एंड ग्रे and went with the chill of winter's day. The street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eyes. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, come the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horse feet should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry troop, the guest laddie of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well contained. She's somebody's mother, boys, you know, for all she's aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand, if ever she is poor and grey, when her own dear boy is away. And somebody's mother bowed low her head in her home at that night, and the prayer she said was, God, be kind to the noble boy, who is somebody's son and pride and joy. ये poem पूरा था. So now I am going to explain you the poem. अभी मैं इस poem को आपके लिए explain करूँगी. Listen carefully and try to understand. Somebody's Mother, written by Mary Doe Bryan, is a beautiful poem depicting wonderful values of care and love for others. ये जो poem है Somebody's Mother poem है वो मेरी डो ब्रेन के द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता है. इस कविता में दूसरे के लिए प्यार और देखभाल के अद्भुत मूल्यों को दर्शाती है ना. An old woman wearing ragged clothes was standing at a crossing to go to the other side of the road. She was waiting for the traffic
to stop so that she could safely go to the other side. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ना, सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए एक बूढ़ी औरत एक फटे फुटे कपड़ा पहन एक क्रॉसिंग पर खड़ी थी। वो यातायात के रुकने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो सुरक्षित इस तरफ से दूसरी तरफ जा सके। She kept waiting, but the traffic did not stop. No passerby paid heed to her need and concern. तो आगे क्या होता है, वो इंतज़ार करती रही लेकिन यातायात है ना, आना जाना नहीं रुका। किसी ने भी उसकी ज़रूरत पर चिंता की परवाह नहीं की। After some time, a group of boys came out of the school. They were happy and noisy, playing with the newly fallen snow. They moved past the old woman standing at the crossing. तो आगे क्या होता है, कुछ समय बाद लड़कों का एक झुंड, एक समूह स्कूल से बाहर आया। वे बहुत खुश और शोर में थे, मतलब आवाज कर रहे थे। नई गिरी हुई बर्फ के साथ खेलते हुए वे क्रॉसिंग पर खड़ी बूढ़ी औरत के पास चले गए, है ना, उनको क्रॉस करके चले गए। Nobody offered to help her go across the road. However, one boy noticed her and went to help her. He lovingly helped her cross the road. यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हो ना, कोई उनको मदद नहीं किया लेकिन किसी वो लड़के ने उनको मदद करता है ना। किसी भी लड़के ने उसे सड़क पार जाने में मदद करने की पेशकश नहीं की। हालांकि एक लड़के ने उस पर ध्यान दिया। किस पर? उस बूढ़ी औरत पर ध्यान दिया और उसकी मदद करने चला गया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ना, एक छोटा सा लड़का उनको मदद करने के लिए चला गया। उसने प्यार से उन्हें सड़क पार करने में मदद की। As he went back to his friends, he said he helped the old lady, thinking someday someone would help her old mother in a similar situation when he might be far away from her, है ना। तो वो उनको सड़क पार करवाया और जब वो वापस अपने दोस्तों के पास आया और कहा, आज मैं उस बूढ़ी औरत की मदद की है और मैं आशा करता हूँ कि कोई मेरे बूढ़ी माँ की ऐसे ही स्थिति में मदद करेगा। जब मैं उनसे पास नहीं हूँ, जब मैं उनके पास नहीं रहूँगा, उनसे दूर रहूँगा, तो मेरे माँ को भी कोई ऐसे मदद करेगा करके वो अपने दोस्तों के पास आके वापस आने के बाद कहता है ना। तो आखिरी में क्या होता है, द बॉय फेल्ट वेरी कंटेंटेड आफ्टर हेल्पिंग द ओल्ड वुमन। द ओल्ड वुमन दैट नाइट प्रेड टू गॉड टू बी काइंड टू द बॉय हु हैड हेल्प्ड हर क्रॉस द रोड। तो आखिरी में क्या होता है, बुढ़िया की मदद करने के बाद लड़का बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। उनके दिल में बहुत खुशी आई थी, है ना। वो लड़का के दिल में बहुत खुशी आ गया। उस रात बूढ़ी औरत ने क्या की, वो बूढ़ी औरत अपने घर में जाने के बाद रात को गॉड से, है ना, भगवान से प्रार्थना की, भगवान उस लड़का के ऊपर दया करना, है ना, दयालु होना, जिसने मुझे सड़क पार करने में मदद की थी करके बूढ़ी औरत ने गॉड से प्रेयर की। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम, है ना। ये
जो पोएम है उसका समरी, उसका अर्थ ऐसा है। एक बूढ़ी औरत सड़क पार करने के लिए खड़ी थी, उसको कोई मदद नहीं किया, लेकिन एक छोटा सा लड़का उनके पास आके उनको मदद करता है इस रास्ते से इस पार से उस पार जाने के लिए, है ना। तो आपको इसमें से सीखना है ना। आप भी अगर किसी को मदद चाहिए, आपको दिखता है, तो आप उन्हें मदद करना है, ताकि अगर आप मदद करोगे तो जब आप मुसीबत में होंगे नहीं तो आपके परिवार वाले मुसीबत होंगे तो कोई आपको मदद करेगा, है ना। तो टुडे वी लर्नड अबाउट समबडीज मदर। तो आपका होमवर्क ये है, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। और जो लेसन के नीचे रेड कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपके नोटबुक में लिखना है और उनका मीनिंग को लर्न करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।